بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لیلۃ القدر کی تلاش، خالق سے تعلق جوڑنے کا وقت آ گیا۔ مساجد اور گھروں میں اعتکاف کی بہاری، لاکھوں خوش نصیب اعتکاف بیٹھ گئے۔ داتا کی نگری میں سب سے بڑا اجتماع، دعائیں، التجائیں، جہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عبادات اور ریاضت کے لیے متفق ہو گئی۔ داتا دربار میں اعتکاف میں 1500 سے زائد فرزندان اسلام بیٹھے ہیں۔ معتکفین کے لیے داتا دربار انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے افراد کے لیے سحری، افطار اور دیگر ضروری سہولیات کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ معتکفین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا ایک بڑی سعادت ہے۔ یہ عبادات کا مہینہ پورا رمضان المبارک، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھنے کا حکم فرمایا، جس کے پاس ٹائم وہ ضرور بیٹھنا چاہیے۔ ان کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت اور فضیلت رکھی ہے۔ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، سحری افطاری کا بہت اچھا انتظامات ہے، اور اس سحری میں ماشاءاللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ وافر مقدار میں سحری اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو سیکٹری اوقاف کے شکر گزار ہیں، ایڈمنسٹریٹر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تنگی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ بہترین ہیں۔ مینیجر داتا دربار گوہر مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ داتا دربار میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی 1500 سے زائد عقیدت مند اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور تقریباً 1500 کے قریب معتکفین آ کے بیٹھ گئے ہیں دربار پہ۔ ان کی سحری افطاری کا انتظام دربار انتظامیہ کی طرف سے، محکمہ اوقاف کی طرف سے، اور مختلف تنظیمیں ہیں جیسے المدینہ فاؤنڈیشن، کسان گھی، اور ان کی طرف سے کیا گیا۔ ان کے مینیو جو ہیں وہ ہر کیبن کے باہر لگا دیے گئے ہیں، جو ان کو لنگر پر سحر و افطار دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات ہیں۔ صفائی کے لیے ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نوافل اور خصوصی عبادات سے دربار کے احاطے میں روحانیت سے بھرپور ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس سے مغرب تک ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع کے جید علماء کی ملاقات، حکومت سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا، اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام تمام جلوس نماز مغرب تک ختم ہو جائیں گے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع کے جید علماء کرام کی ملاقات میں ہم فیصلے کیے گئے۔ علماء کرام نے حکومت سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں 21 رمضان المبارک یوم شہادت امام علی کے موقع پر جلوسوں اور مجالس کی حفاظت اور فول پروف سیکیورٹی پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے علماء کرام سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج پاکستان آپ سے ایک بار پھر اتحاد اور اتفاق کا تقاضا کر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام نے بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ ملک بھر کے اہل تشیع کے جید علماء کرام نے حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ علماء کرام نے کہا، دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی پر علماء کرام کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔ یوم علی علیہ السلام کے مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ روڈ سے 3000 سے زیادہ افراد سے شیورٹی بانڈ حاصل کر لیے۔ کرایہ داروں، دکانداروں اور نئے رہائشوں سے بھی شیورٹی بانڈز لیے گئے۔ روٹ پر موجود 2 اسپتالوں کا ریکارڈ بھی حاصل۔ روٹ پر واقع علاقوں کی مکمل مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ یوم علی کے مرکزی جلوس کے لیے لاہور میں سخت سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ لاہور پولیس نے جلوس کے روٹ سے 3000 سے زیادہ افراد سے شیورٹی بانڈ حاصل کر لیے۔ کرایہ داروں، دکانداروں اور نئے رہائشوں سے بھی شیورٹی بانڈز لیے گئے۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر واقع علاقوں کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلان کے تحت اہم ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ جلوس کے روٹ پر موجود 2 اسپتالوں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز اور مریضوں کا ڈیٹا بھی سیکیورٹی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ یوم علی کے جلوس کے لیے لاہور پولیس نے سیکیورٹی کے حوالے سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے حساس جلوس روٹ پر رہائشیوں اور دکانداروں کی تفصیلات جمع کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کو ورک فرام ہوم کی اجازت مل گئی۔ پیر سے جمعرات تک سرکاری اداروں میں کام ہوگا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی۔ پنجاب میں نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد۔ سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول پر 50% کٹوتی ہوگی۔ وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس افسران اور ہوم سیکرٹری کے ساتھ پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے کفایت شعاری اقدامات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
मुल्क में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, ईद तक रिक्शों और मोटरसाइकिल सवारों के चालान बंद कर दिए गए। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ी तो CTO समेत फोर्स मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगी। हुकाम के मुताबिक सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी नहीं की जाएगी। कीमतें बढ़ने के तीसरे मरले में साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। आलमी सतह पर जंगी सूरत हाल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस का शहरियों के लिए रिलीफ, मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शों का ईद तक चलान रोक दिया गया। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ी तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर समेत फोर्स मोटरसाइकिल इस्तेमाल करेगी। हुकाम का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी नहीं की जाएगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कीमतें बढ़ने के तीसरे मरहले में साइकिल पर पेट्रोलिंग की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी भी गैर जरूरी गाड़ी और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से गुरेज करें। माह मुबारक में गिरां फरोशों की दिहाड़ियां मटर सेंचुरी कर गया। शिमला मिर्च डबल सेंचुरी के करीब 180 रुपए किलो हो गई। सेब, अंगूर, केले, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी और अमरूद भी महंगे हो चुके हैं। माह मुबारक में गिरा फरोशों की दिहाड़ियां, शहर में सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों और ओपन मार्केट के रेट्स में फर्क बरकरार है। शिमला मिर्च डबल सेंचुरी के करीब 180 रुपए किलो हो गई। मार्केट में नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 20 रुपए के बजाय 40 रुपए किलो, प्याज 60 की बजाय 80 रुपए, टमाटर सरकारी निर्ख 65 के मुकाबले में 80 रुपए, करेला 160 की बजाय 190 रुपए किलो फरोख्त हुआ। मटर 40 रुपए के बजाय 100 रुपए में बेचा गया। दुकानदारों की जानिब से तमाम सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक इजाफा किया गया। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा देखा गया। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रमजान बाजारों में बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। रमजान बाजारों में अशिया फरोनोश की फरोख्त का हुजम 1.9 अरब रुपए तक जा पहुंचा। मुनाफाखोर भी बाज न आए। महकमा फूड ने मुनाफाखोरों के खिलाफ 700 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए। सूबा भर में मजमूई तौर पर 75 निगहबान रमजान बाजार कायम किए गए, जहाँ 1763 स्टॉल होल्डर्स मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया फराहम करने में मसरूफ हैं। शहरियों के लिए 1556 डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन भी नस्ब की गई हैं। राशन और निगहबान रमजान कार्ड से शहरियों ने सहूलत हासिल की। अब तक रमजान बाजारों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी खरीदारी के लिए आ चुके। अशिया खुर्दनोश की फरोख्त का हुजम 1.9 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। शहरियों को 9.6 करोड़ रुपए का बराह रास्त माली रिलीफ भी मिला। इस वक्त हमारे पास डेली फुटफॉल हर बाजार, टोटल बाजार का जो है वो 5.5 लाख के करीब फुटफॉल ऑन एवरेज है। और पिछले गुज़िश्ता यकम रमज़ान से लेकर अब तक का जो फुटफॉल है ये कोई लोग वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर जो है इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इसका सब्सिडी की सूरत में जो लोगों को फ़ायदा हुआ है ख़रीदारी की सूरत में वो 1.9 बिलियन का यहाँ पर अभी तक सब्सिडी या ख़रीदारी यहाँ पर हो चुकी है। 51 रमज़ान बाजारों में होम डिलीवरी सर्विस फराहम की गई। 24,000 से ज़ायद ऑर्डर्स शहरियों तक पहुँचाए गए। मजमूई मालियत 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। फर्स्ट एड काउंटर्स पर 3,000 से ज़ायद अफराद को तिबी इमदाद दी गई। सीनियर सिटीजन डेस्क पर 10,000 से ज़ायद अफराद को खिदमात फराहम की गई। सूबा भर में 400 से ज़ायद दस्तरखान भी कायम किए गए, जहाँ 22 लाख से ज़ायद अफराद को अफ्तार फराहम की गई। प्राइस कंट्रोल और इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अब तक 12 लाख से ज़ायद इंस्पेक्शन की जा चुकी, जिनमें 700 से ज़ायद मुकदमात दर्ज, 9,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हुए, 3,700 से ज़ायद दुकानें सील, 8 करोड़ रुपए के भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डेली बेसिस पर हम बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल प्राइस हाइक ना आए या इन्फ्लेशन की कोई इस किस्म का वो जो है वो लोग जो इमेजिनरी इन्फ्लेशन लोग खुद ही से ऐड कर लेते हैं बाज़ का ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने से, जबकि चीज़ें जो हैं अभी स्टोर में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। जो इंपोर्टेड आइटम्स थी, पल्सेस वगैरह थी, वो स्टोरेज में ऑलरेडी लोगों के पास स्टोर्स में अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो सब्जियां हैं वो हमारी इस वक्त लोकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या सिंध से कुछ आ रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 1-2 रुपए की कहीं पे कोई वेरिएशन आई है, मगर वो भी तमाम सब्जियों में नहीं आई। सुबह भर की 92 मंडियों में रोजाना की बुनियाद पर नीलामी की निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका महकमों के नुमाइंदे कीमतें और सप्लाई मॉनिटर कर रहे हैं। डीसी काउंटर्स पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी मेयार यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टीमें मुकर्रर हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अलीम अख्तर, सिटी 42। CCD को जदीद आलात से लैस करने की मंजूरी। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। CCD का हेडक्वार्टर हर जिले और तहसील में ऑफिस और थाने बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी है। ईद के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया जाएगा। अवामी पजीराई के बाइस CCD के दायरेकार को मजीद वुसअत दी जाएगी। CCD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम कंट्रोल करने वाले इदारों की तर्ज पर इस्तवार किया जाएगा। CCD को जदीद फोरेंसिक तफ्तीशी महारतों मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि AI सॉफ्टवेयर, मशीनरी और
आला से CCDs को जदीद इदारे में बदला जाएगा। मुजरिमों का सुराग लगाने और उनकी मॉनिटरिंग के जदीद तरीन आलात भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब के हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइशगाहें बनेंगी। ईद उल फितर के बाद पंजाब भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में गैर कानूनी असलहे के सदेबाब के लिए नया कानून बनाने का भी फैसला किया गया। खवातीन पर तेजाब छिड़कने वालों से निपटने का टास्क CCD को दे दिया गया। CCD में जराइम के खात्मे के जदीद तहकीकी मरकज भी कायम किया जाएगा। सिक्योरिटी का जामिन इदारा बेयारो मददगार। CCD कैंप के 1 साल बाद भी माली मुश्किलात का शिकार। खतरनाक दहशत गर्दों की तफ्तीश उधार, इनाम में भी कटौती। 1 लाख का ऐलान, हाथ में सिर्फ 50,000। सरकारी तफ्तीश भी जाती जेब से होने लगी। अफसरान में शदीद मायूसी फैल गई। CCD कयाम के 1 साल बाद भी माली मुश्किलात का शिकार है। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड्स ही ना मिले। CCD अफसरान जेब से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। CCD ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबलों के अलावा हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश के लिए फंड्स ही जारी ना हो सके। गुज़िश्ता साल CCD अफसरान को इनामी रकम भी मुकम्मल ना मिल सकी। CCD ज़राए के मुताबिक 1 लाख इनाम का ऐलान हुआ, 50,000 दिए गए। 50,000 इनाम पाने वाले को 25,000 मिले। फंड्स और इनामी रकम की ताखीर से अफसरान में बददिली फैलने लगी। दूसरी जानिब पंजाब में तफ्तीश के निजाम को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने 21 अरब से जायद के फंड्स मांग लिए। गुज़िश्ता साल केसेस में तय करदा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ 2% मिल सका था। तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए केसेस के मुताबिक फंड्स फराहमी की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। हुकाम के मुताबिक तफ्तीश के अमूर निपटाने के लिए फराहम करदा रकम और असल लागत में बहुत फर्क है। पुलिस को गुज़िश्ता साल 11,27,000 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 20 अरब की कॉस्ट दरकार थी, जबकि सिर्फ 41 करोड़ रुपए फराहम किए गए। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी 4,300 फीमा स्कूल्स के साथ साथ 3 माह की तनख्वाहों से महरूम है। दूसरी जानिब लाहौर में 670 सरकारी स्कूलों में तैनात दर्जा चहारम के मुलाजमीन की मुबैना तौर पर मेरिट के खिलाफ भर्तियाँ। 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद दर्जा चहारम की भर्तियों की इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। 4,300 पेमा स्कूल्स के असातिज़ा 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हो गए। मुआवजों की अदायगियां न होने से 4300 लाइसेंस स्कूल्स भी शदीद माली बहरान का शिकार हैं। 3 माह से मुआवजा न मिलने के बायस 20,000 असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया को संगीन माली मुश्किलात का सामना है। पीमा के तहत स्कूलों में 6 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम है। असातिज़ा का कहना है कि पीमा की जानिब से हर हफ्ते अदायगियों के वादे और तसल्लियां दी जाती हैं। पीमा हुकाम का कहना है कि पार्टनर्स को मुआवजों की अदायगियां 1 से 2 रोज में कर दी जाएंगी। लाहौर में 670 सरकारी स्कूलों में तैनात दर्जा चहारम के मुलाजमिन की मुबैना तौर पर मेरिट के खिलाफ भर्तियां। 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद दर्जा चहारम की भर्तियों की इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। मुलाजमिन तनख्वाहों की हासिल के लिए ख्वार होने लगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी से इनकार कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने DPI एलिमेंट्री की सरबराही में नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। ठेके पर दिए गए स्कूलों में तुलबा के नताइज को सरकारी रकम की अदायगी से बराह रास्त जोड़ दिया गया। 90% से ज्यादा नताइज देने वाले स्कूलों को ही फी तालिब इल्म अदायगी होगी। कमजोर नताइज देने वाले स्कूलों के फंड्स रोक दिए जाएंगे। आउटसोर्स में स्कूलों के लिए पैक्टा खसूसी स्कूल बेस्ड टेस्ट लेगा। ठेके पर दिए गए स्कूलों का नताइज पैक्टा पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा। रमजान निगहबान कार्ड्स की तकसीम में बेसाबकियां। एक ही शनाख्ती कार्ड पर डुप्लीकेट कार्ड्स की प्रिंटिंग का इंकशाफ हुआ है। ऐप में मुस्तहक अफराद का डाटा न मिलने की शिकायत भी रिपोर्ट की गई। रमजान निगहबान कार्ड्स की तकसीम के अमल में मुतादिद संगीन बेज़ाब्तियां देखी गईं। इस हवाले से तैयार की गई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सरकारी दस्तावेजात में निशानदही की गई है कि कई ऐसे अफराद के नाम पर कार्ड्स जारी हुए जो वफात पा चुके हैं या बैरून मुल्क मुकीम हैं, जबकि बास केसेस में एक ही शनाख्ती कार्ड पर डुप्लीकेट कार्ड्स प्रिंट होने का इंकशाफ भी हुआ है। इसी तरह मोबाइल नंबर्स की तकरार, कार्ड्स पर दर्ज नामों और फोन नंबर्स में गलतियां और ऐप में मुस्तहक अफराद का डाटा न मिलने जैसी तकनीकी और इंतजामी खामियां भी सामने आई हैं। रिपोर्ट में इन इंतजामी कमजोरियों की निशानदही के बाद हुकाम ने डेटा की तौसीही और डुप्लीकेट कार्ड्स की दोबारा प्रिंटिंग की हिदायत जारी कर दी है। सीनियर एडवाइजर टू वज़ीर आला पंजाब सेनेटर अनुशा रहमान और सूबा वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के इकनॉमिक जोन में नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में फैसलाबाद के नज़दीक कायम किए जाने वाले नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा सेंटर्स की तामीर, टेक्नोलॉजी जोन के क़याम और जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर एडवाइज़र अनुशा रहमान ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की अवलीन तरजीह है। फैसलाबाद के नज़दीक नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए IT डिपार्टमेंट और
फेडमिक मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए नवाज शरीफ ITCT के क़याम का मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब यहाँ पर आपको बताएं, गुलशन रावी रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के सर्जिकल टावर में ICU वार्ड की इफ्तिताही तकरीब मुनाक़िद की गई। समाजी कारोबारी शख्सियात, तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स ने शिरकत की। गुलशन रावी रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के सर्जिकल टावर में ICU वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में कारोबारी शख्सियत शाहजेब अकरम ने फीता काट के ICU का इफ्तिताह किया। तकरीब में देगर समाजी कारोबारी शख्सियात, तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स भी शरीक हुए। मेहमानों ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। थैलेसीमिया के ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत भी की। शाहजेब अकरम ने कहा कि सेहत के शोबे में इस नौयत के फलाही मंसूबे माशरे के लिए उम्मीद की रोशन मिसाल है। रियाज मंसूर ट्रस्ट न सिर्फ ये कि अपने इलाके की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, बल्कि दूर दराज से जो पेशेंट, गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आते हैं, यहाँ से एंटरटेन होके जाते हैं। तो ये इन्होंने अपना जो शोबा है उसको बढ़ा दिया है और आज बेहतरीन सर्जिकल टावर का इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है। और अहले इलाका को ना सिर्फ ये कि सारी सहूलतें मिलेंगी बल्कि दीगर लोग भी इससे मुस्तफीद होंगे। अदारे के बानी मुदस्सर महमूद, चेयरमैन अब्दुल रशीद और सदर मोहम्मद नफीस ने भी इजहार ख्याल किया। सेहत इस वक्त बहुत बड़ा मसला है और ख़ासकर सर्जरी उससे भी बड़ा मसला है और उसमें इस सिलसिला हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी है और उसके अलावा मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। तो हमने इससे पहले OPD का सिलसिला शुरू किया था, थैलेसीमिया की किया था, अभी ये पूरा एक सर्जिकल टावर बनाया है। तो अमला है, इसके सर्जन जो हैं वो बहुत टॉप क्वालिटी के अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे और मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर आ सकें और एक गरीब बंदे को भी वो सहूलियात मिल सकें जो किसी अफोर्डिंग को मिलती हैं। शुरका ने मरीजों में तहाइफ तकसीम किए, वालदैन से भी मुलाकात की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। के यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम समेत सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम, डायरेक्टर अमजद अली खान, वाइस चेयरमैन अफीफ सिद्दीकी, डायरेक्टर्स वसीम अनवर चौधरी और मोहम्मद अब्दुल्ला ने शिरकत की। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप अब्दुल मनान खुरम का कहना था कि एक ही जगह पर तमाम सहाफ़ियों से मिलकर अच्छा लगा है। आज हमारी सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तारी थी और साथ हमने जो प्रेस क्लब की न्यूली इलेक्टेड बॉडी है उनको इस्तकबालिया दिया था। तो बड़ी तादाद में यहाँ सहाफ़ी तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए खुशी का बायस है कि सहाफ़त के जो लोग हैं, सहाफ़त के जो दोस्त हैं, वो हमारे साथ इतना ताउन करते, इतना प्यार करते हैं। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वाइस चेयरमैन अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि यूनिक ग्रुप में सहाफ़ियों के बच्चों को माहाना फीस में 50% डिस्काउंट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को यह एजाज़ हासिल है कि सहाफ़ी बरादरी जितनी भी है उनके साथ हमारे MOU भी साइन हुए हैं 50% डिस्काउंट के लिए और हम सहाफ़ियों के एजाज़ में हर साल यहाँ पर इफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं। अच्छा लगता है, सब दोस्त मसरूफियात में से अपना वक्त निकाल के आते हैं और इकट्ठे मिल बैठते हैं जी। इफ्तार डिनर में सीनियर सहाफ़ी रिजवान नकवी, रजा खरल, अमीन हफीज, अरसलान भट्टी, जाफर बिन यार, मजहर इकबाल, सलीम शेख, सालिक नवाज, कामरान अजीम और वकार यूसुफ समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। ईद उल फितर करीब आते ही शॉपिंग का सिलसिला भी तेज़ हो गया। ख़वातीन की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के हमरा लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग में मशगूल हैं। मनपसंद कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी भी जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया से। जी आदिया बताएगा। जैसे ईद उल फितर के दिन करीब आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केटों की रौनकें बहाल होती चली जा रही हैं और लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद न सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चों के हमरा भी यहां पर मौजूद है और शॉपिंग का सिलसिला खासे उरूज पर पहुंच चुका है। खवातीन तो शॉपिंग कर ही रही हैं, ज़रा बच्चों से जान लेते हैं कि उन्होंने कितनी शॉपिंग की है, कितनी बरकरार है, कितनी रहती है। ये बताइएगा बेटा, शॉपिंग कर ली है और 3 दिन की शॉपिंग हो गई, क्या क्या खरीदा है? सूट खरीद लिए 2 दिन के और 1 दिन का रह गया है और जूतियाँ खरीद ली हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज्वेलरी के हवाले से क्या कहोगे कि ज्वेलरी चूड़ियाँ रह गई हैं। बहुत जल्दी नहीं कर लिया आपने? बस। अच्छा, ये बताएगा कि रोज़ा खोलने के साथ ही वह फैमिली से या वालिदैन से कहना शुरू कर देती हैं कि जी मार्केट का रुख करें, और अब जो आखिरी सूट रह गया वो कब इरादा है खरीदने का? अभी खरीद लूँगी। अभी तो दिन चल रहा है। आपकी भी शॉपिंग हो गई? जी। क्या क्या खरीदा है? हम लोगों ने सब कुछ खरीद लिया। भाई जबरदस्त।
वही ज़बरदस्त, ये वो लोग हैं जो इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि चांद रात को वो कहा जाता ना कि वक्त कम रह गया, मुकाबला बहुत सख्त है, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना जी पहले ही सारी शॉपिंग कर ली जाए। और एक चीज़ है, कॉमन है ये कि वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चों की शॉपिंग पहले करा ली जाए, देन उसके बाद अपनी बारी आए। बहुत शुक्रिया देना अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप रहिए सिटी 42 के साथ।